Hello, Virgo people. Welcome to my reading. It's a love reading based on love. The theme of this reading is love, relationships, lovers. So, this is the main theme of the reading. I'll be using multiple oracle cards, multiple oracle decks for this reading. So, hope it resonates with you because it might resonate with some Virgo, it might not resonate with some Virgo. So, take it as it resonates. This side will be Virgo people, your reading, and this side will be your lovers or partners reading. Either way, you can flip the side as it resonates accordingly. This could also be your partner's side, and this could be your side, Virgo people. So just take it as it resonates. You can flip the energies because in this kind of readings, it does happen that way. So let me start with your reading. Universe, please guide the Virgo people and their partner what they need to know in their love life. What changes do they need to bring in their love life for their betterment, for their enhancement? Please guide them, universe. Angels, romance angels, please guide them. This is the romance angels oracle deck cards, and these are the lovers oracle deck cards. Okay, so I'm done with shuffling. Here I go. Feelings, intentions, actions. Feelings, intentions, actions. Okay, so let me start with your reading. Virgo people, let's see what is in store for you, what's the stars have to say for you. Okay, the first card says, wait. Don't rush into it. Allow nature to take its course. So, universe is asking you to wait. If you're in a hurry in something, in any kind of decision making, or it could be you're in a hurry in proposing someone, your partner, or in your marriage, or getting into a relationship. So universe is asking you to wait. Just wait for some time. Don't rush into it. Maybe आप हड़बड़ी कर रहे, हड़बड़ करके कोई काम करना सही नहीं होता है, गलत ही होता है हमेशा. बाद में रिग्रेट करना पड़ता है, रिपेंट करना पड़ता है. सो वेट, डोंट रश इनटू इट. अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स. धीरे धीरे नेचर को, टाइम को एक्शन लेने दीजिए. Let me see what the romance angels have to say. Express your love. Go ahead and make the romantic gesture. See, this is the card of your feeling. Your feeling is telling you to wait. You're having a feeling. You don't feel like rushing. Do you understand the story? Your feeling is asking you to wait. The feeling that you're having deep inside of you. It is asking you to wait. It is asking you not to rush. Let nature take its course. Take its own sweet time. बट एंजल्स आर गाइडिंग. मे भी हो सकता है आप डर रहे, आप इनसिक्योर फील कर रहे किसी बात से, कुछ भी रीज़न हो सकता है. सो इट कुड हैपन दैट यू आर एक्चुअली feeling scared, you are not feeling very sure, very confident in your love or love life or in your relationship. So angels, romance angels are asking you and guiding you to express your love. आपके मन में, दिलो दिमाग में शायद ये क्वेश्चन चल रहा है, क्या मैं बोलूँ, मुझे वेट करना चाहिए शायद, मैं नहीं तो हड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, हड़बड़ हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा. See how it rhymes.
सो बहुत ख्याल, बहुत क्वेश्चन आपके मन में शायद चल रहा है, क्या मैं जल्दबाजी तो नहीं कर रहा हूँ, क्या मैं जल्दबाजी तो नहीं कर रही हूँ। ऐसा हो सकता है, चलता है हम लोग के दिमाग में, दिल में। तो एंजल्स आर गाइडिंग यू, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। ग्रीन सिग्नल आपको मिल गया एंजल की तरफ से, रोमांस एंजल्स की तरफ से। और क्या चाहिए? सो यू कैन गो एंड एक्सप्रेस योर लव. So go ahead and make the romantic gesture. This was the guidance for your feelings. Let's come to the intention card. Trust. Transformation occurs through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. Trust करने के लिए कहा जा रहा है आपको, या फिर आपके इंटेंशन में चल सकता है कि मुझे ट्रस्ट करना चाहिए, या फिर यूनिवर्स आपको कह रहा है इस मैसेज के थ्रू कि यू हैव टू ट्रस्ट. ट्रांसफॉर्मेशन ऑकर्स ओनली थ्रू एक्सेप्टेंस. हम लोग किसी किसी चीज़ को कभी कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं या कर पाते हैं. उसके लिए मेहनत चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए, वो कॉन्फिडेंस चाहिए कि रियलिटी को एक्सेप्ट कर पाए. हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते कभी कभी. सो ट्रस्ट कीजिए अपने आप पे, अपने पार्टनर पे, अपने लव लाइफ पे. हिम्मत, हौसला रखिए अपने आप पे या अपने पार्टनर पे भी. ट्रस्ट कीजिए, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन तभी होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी आप चेंज ला पाएंगे. ये जो एक्सप्रेशन की बात हो रही है, जो आपके फीलिंग्स में चल रहा है, क्या मैं एक्सप्रेस करूँ मेरा लव, वेट करूँ, बहुत सवाल जवाब चल रहा है ना आपके दिमाग में, हो सकता है इन योर फीलिंग्स. सो यूनिवर्स इज आस्किंग यू टू ट्रस्ट योर फीलिंग्स. एंजल्स हैव गाइडेड यू टू एक्सप्रेस योर लव. तभी ट्रांसफॉर्मेशन हो पाएगा, नहीं तो प्यार मन में ही दब के रह जाएगा. आप अगर एक्सप्रेस नहीं करोगे तो आपका प्यार अंदर ही घुट के मर जाएगा. एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, एक्सप्रेस योर लव टुवर्ड्स योर पार्टनर. लेट हिम नो, लेट हर नो. तभी ट्रांसफॉर्मेशन हो पाएगा. Isn't it? You deserve love. आपके मन में अगर डाउट चल रहा है तो एंजल्स आर सेइंग यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल. आपको ये भी लग सकता है, ये जो वेट वाला कार्ड आया है, आपको लग सकता है, ऐसे भी आप फील कर सकते हैं कि क्या मैं सही इंसान हूँ, क्या मैं वर्दी हूँ उसकी लव पाने के लिए. चलता है हम लोग के दिमाग में, हम लोग सोचते हैं ना, इस तरह का ख्याल आता है. तो एंजल्स की तरफ से, रोमांस एंजल्स की तरफ से गाइडेंस है दैट यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल. अपने आप को नेगेटिवली मत लीजिए, नेगेटिव थॉट्स में मत रखिए अपने आप को. आप लवेबल हैं, यू डिज़र्व लव सर्टनली. तो अपने लव को जाके प्रपोज कीजिए, बिकॉज इतना जानिए यू डिज़र्व लव. अपने जो ख्यालात हैं वो बयान कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए अपना फीलिंग्स. यही इंटेंशन होना चाहिए आपका, बिकॉज यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल. The action card says, when you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. हम लोग खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ वापस जाते हैं. साथ में लेके आते हैं मेमोरीज, साथ में लेके जाते हैं मेमोरीज. जो सोलफुल मेमोरीज होता है वही, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो. सो व्हेन यू पास फ्रॉम दिस वर्ल्ड यू टेक नथिंग विद यू बट योर सोल. आत्मा ही तो जाता है, आत्मा ही तो शरीर से निकलता है ना. शरीर तो वहाँ का वहाँ ही रहता है, फिर उसको जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है, लेकिन आत्मा अमर है. फिर आत्मा वापस आता है, इनकारनेट करता है, री इनकारनेट करता है एक नए जन्म के साथ. सो तब क्या आता है हम लोगों के साथ, उस आत्मा के साथ क्या आता है? योर मेमोरीज,
that you have shared with those you have loved, with those you have loved in your past life. यही हम लेके जाते हैं, यही हम वापस लेके आते हैं, उसी हिसाब से हमारा कर्मा होता है. So the action card says that अच्छे काम कीजिए, प्यार कीजिए, सही मायने में प्यार कीजिए. नो डिसेप्शन, नो ऑब्सेशन, नो एडिक्शन, ये सब प्यार नहीं होता है. Isn't it? This is not love. Love is not like this. Love should be blissful, peaceful, with full of strength, yet calmness, stability, wisdom, maturity, groundedness, solid, long term. That is love. So let me see what the angels have in store for you. Reconciliation. Someone from your past is returning to your life. See, अभी मैंने इस कार्ड के बारे में पास्ट का जिक्र किया कि जब हम लोग नया जन्म लेते हैं तो हम लोग के साथ साथ ये पास्ट ही आता है. See how these two cards are related. When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you have loved. So, रिकन्सिलिएशन की बात की जा रही है. हो सकता है आपके पार्टनर के साथ कोई अनबन हुआ है या फिर डिस्कनेक्ट ही हो गए आप लोग एक दूसरे से, नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, या फिर प्यार ख़त्म होने को आ रहा है, ऐसा भी स्टेज हो सकता है, ऑन द वर्ज ऑफ एंडिंग. सो रिकन्सिलिएशन एंडेड, एंजल्स गाइड कर रहे हैं आप लोगों को. उनका कहना है रिकन्सिलिएशन का टाइम है. समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ. दिस कुड बी अ पर्सन फ्रॉम योर पास्ट लाइफ, दिस कुड बी अ पर्सन फ्रॉम योर पास्ट लव, कुछ भी हो सकता है. He or she, that very particular person, is returning to your life once again. So, express that feeling. Don't have doubt. Maybe इस मुद्दे को लेके आपके मन में डाउट हो रहा है. आप वेट कर रहे, सोच रहे, रात रात भर जग रहे, सोच रहे क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ. Virgo people, isn't it? So it's time for reconciliation. That's what the angel is conveying it to you as in the form of message. Someone from your past is returning to your life. ये इस जन्म में भी कोई पास्ट रिलेशनशिप से हो सकता है या फिर पास्ट लाइफ से भी कोई हो सकता है. Okay, let's move on to the other side. Friendship. Virgo people, this could be your side or this could resonate with your partner. Take it as it resonates. So, friendship. Nurture the bonds of friendship within your relationship. It is absolutely necessary. And your love life will dramatically improve. किसी भी रिलेशनशिप में, सिर्फ लवर्स पार्टनर्स रिलेशनशिप में ही नहीं, पेरेंट्स रिलेशनशिप में, सिबलिंग्स रिलेशनशिप में, चिल्ड्रन रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप इज़ द बेसिक बॉन्ड, दैट इज़ द फाउंडेशन. दोस्त बनिए एक दूसरे का, तब जाके आपका लव प्रॉस्पर करेगा. सिर्फ लवर्स रहने से नहीं चलेगा, सिर्फ फिज़िकल इंटीमेसी रहने से नहीं चलेगा. दोस्त बनिए ताकि एक दूसरे के साथ शेयर कर पाए अपने इनसिक्योरिटीज़, डर या खुशी वाली फीलिंग्स, चाहे कुछ भी फीलिंग्स हो. सो मेक द बॉन्ड, द फाउंडेशन ऑफ द बॉन्ड एज फ्रेंडशिप. Nurture your bonds of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve. देखिए तब कैसे improve करता है आपका love life. शायद आपका आपके रिलेशनशिप में इस टाइप का पैटर्न शायद नहीं फॉर्म किया है आपने,
तो इसीलिए इट्स बीइंग आस्क्ड। आपके फीलिंग्स में शायद यही है कि फ्रेंडशिप करना चाहिए, तभी जाके रिलेशनशिप इम्प्रूव होगा। बिकॉज फ्रेंडशिप इज़ द फाउंडेशन, इट्स द कोर, इट्स द बेस ऑफ एनी डैम रिलेशनशिप। कोई भी रिलेशनशिप आप ले लो, अगर जिसमें फ्रेंडशिप ना हो तो वो रिलेशनशिप कभी ब्लॉसम नहीं कर पाएगा, सही मायने में प्रॉस्पर नहीं कर पाएगा, इम्प्रूव नहीं कर पाएगा। सो फ्रेंडशिप इज़ अ मस्ट। Release your ex. The time has come to clear your energy. हो सकता है एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं टू रिलीज, दे आर आस्किंग यू टू रिलीज योर एक्स. द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी. किसी इंसान के साथ कभी कभी रिश्ता नहीं बनता है, आप में भी बहुत बर्डन में है, बहुत बोझ में है. सी द पिक्चर इज डिपिक्टिंग लाइक दैट. So, angels, that's why angels are asking you to release your ex. या फिर ऐसा भी हो सकता है आप फ्रेंडशिप फॉर्म कीजिए. लवर्स, ऐसा अगर सिचुएशन हो कि आप लवर्स नहीं रह पाए तो आप एटलीस्ट फ्रेंड्स रह सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है. फिज़िकल इंटीमेसी हमेशा ज़रूरी नहीं है प्यार में. फ्रेंडशिप होना भी बहुत 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 बड़ी बात है. एक सच्चे दोस्त को पाना बहुत बड़ी बात है. द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड. ट्विन फ्लेम्स. योर पैशन इग्नाइट्स. ट्विन फ्लेम्स, ये ट्विन फ्लेम का कार्ड है. अगर आपको ट्विन फ्लेम के बारे में पता नहीं है तो मैं ज़रा बता दूँ ब्रीफली शॉर्टली कि एक ही सोल का दो हिस्सा होता है ट्विन फ्लेम. ऐसा होता है, सबके साथ नहीं होता है लेकिन किसी किसी के साथ होता है ऐसा. सो आप ज़रा रिसर्च कीजिएगा, ज़रा गूगल कीजिएगा. वीडियोस भी मिलेंगे आपको यूट्यूब में बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स के ऊपर. गूगल में भी आपको बहुत आर्टिकल्स मिलेंगे, बहुत वेबसाइट्स मिलेंगे ट्विन फ्लेम्स के ऊपर. सो दिस कार्ड इज़ ऑल अबाउट ट्विन फ्लेम्स. हो सकता है आप जिससे मिले हैं या आप जिससे एक्सप्रेस करना चाहते हैं, यहाँ पे जैसे कहा जा रहा है, हो सकता है वो आपका ट्विन फ्लेम है. हो सकता है वो आपका ट्विन फ्लेम हो. ही और शी कुड बी योर ट्विन फ्लेम. सो इग्नाइट योर पैशन, बिकॉज ट्विन फ्लेम का जर्नी बहुत स्पेशल रहता है, डिफ़िकल्ट भी रहता है. डिफ़िकल्ट तो खैर मेरे ख्याल से हर एक रिलेशनशिप में डिफ़िकल्टीज़, चैलेंजेस आते हैं जो हम लोग को ओवरकम करना चाहिए, एम्पावर करना चाहिए खुद को भी और अपने पार्टनर को भी. सो लव योर सेल्फ फर्स्ट. ट्विन फ्लेम तक आप तभी पहुंच पाएंगे जब आपको सेल्फ लव का एहसास होगा. अगर आप खुद से भरे हुए हैं लवफुल फीलिंग से, तभी आप दूसरों को लव कर पाएंगे या लव दे पाएंगे. अगर खुद खाली बैठे हैं तो दूसरों को भला क्या देंगे. आपके पास कुछ होना चाहिए ना, आपके पास कुछ देने के लिए किसी को. खुद के पास ही अगर प्यार नहीं है, खुद को ही अगर प्यार नहीं करते हैं तो फिर दूसरों को भला क्या देंगे. सो द एंजल्स आर टेलिंग यू, लव योर सेल्फ फर्स्ट. योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव. अपने आप को लव कीजिए, अपने आप को रेस्पेक्ट कीजिए. जब आप ये इवॉल्व करेंगे, स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, तब जाके आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलेंगे. ट्विन फ्लेम को मिलना आसान नहीं होता है, बहुत लंबा सफ़र होता है, बहुत ट्रबलसम सफ़र होता है. रिसर्च करके देखिएगा, तब आपको सही मायने में समझ आएगा कि ट्विन फ्लेम कैसे मिलते हैं, कैसे जर्नी से वो जाते हैं. तब जाके ट्विन फ्लेम के सामने आप खड़े हो पाएंगे या फिर मिलेंगे. सो फॉर दैट यू नीड टू लव योर सेल्फ फर्स्ट, रिस्पेक्ट योर सेल्फ फर्स्ट, लव अदर्स, रिस्पेक्ट अदर्स. तब जाके you will get onto the stage of twin flames, or known as twin souls also. Okay,
So this was the card of intention. Moving on to the card of action. Soulmate. Soulmate क्या होता है? Soulmate word is very common compared to twin flame. What is soulmate? Soulmate होता है अलग सोल. सेम सोल का हिस्सा नहीं होता है, अलग सोल होता है, लेकिन उसके साथ भी बहुत डीप बॉन्डिंग होता है. और ट्विन फ्लेम का एक ही सोल का डिवीजन होता है दोनों अलग पार्ट में. That's why it's known as twin flame. It's twinning. एक ही सोल का दो अलग हिस्सा ऐसा होता है. सबके साथ नहीं होता है, किसी किसी के साथ होता है. इसीलिए मैं फिर कह रही हूँ, ज़रा रिसर्च कीजिए. तो एनीवेज, दिस एक्शन कार्ड इज सेइंग सोलमेट. योर सोलमेट इज ऑलरेडी विथ यू इन स्पिरिट. ट्विन फ्लेम के साथ भी ऐसा होता है, स्पिरिट में मिलते हैं. फिजिकल शायद ना भी मिले, ऐसा हो सकता है कि फिजिकल शायद ना भी मिले, लेकिन स्पिरिचुअली आप लोग यूनाइटेड हैं. एस्ट्रल प्लेन में आप लोग यूनाइटेड हैं. योर सोलमेट इज ऑलरेडी विथ यू इन स्पिरिट. बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली. ये आपको बिलीव करना पड़ेगा, तभी जाके ये मैनिफेस्टेशन होगा फिजिकली में, इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल वर्ल्ड. तब जाके शरीरी रूप में आपके सामने आएगा आपका सोलमेट या फिर आपका ट्विन फ्लेम. कुछ भी हो सकता है. इट कुड बी सोलमेट, इट कुड बी ट्विन फ्लेम. ईदर वे इट इज़ पॉसिबल बिकॉज बोथ द कार्ड्स हैव कम. मैनिफेस्टेशन के ऊपर मेरा वीडियो है मेरे चैनल में. व्हाट इज़ मैनिफेस्टेशन, हाउ इज़ मैनिफेस्टेशन बीइंग डन, कैसे होता है, क्या होता है मैनिफेस्टेशन. मेरे चैनल में जाके आप वीडियो रेफ़र कीजिए, आपको पता चल जाएगा मैनिफेस्टेशन क्या होता है. थॉट्स को रियलिटी में बदलना, ड्रीम्स को रियलिटी में बदलना, ट्रांसफॉर्म करना, इसी को हम लोग मैनिफेस्टेशन कहते हैं. सो यू कैन वॉच माई वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल and you will get to know what manifestation is. So आप मैनिफेस्ट कीजिए, अपने बिलीफ सिस्टम में रखिए, अपने थॉट्स में रखिए, तब जाके स्पिरिट वर्ल्ड से फिज़िकल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट करेगा आपका सोलमेट या फिर आपका ट्विन फ्लेम. कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सबका केस अलग अलग होता है. सब वर्गों का एक जैसा नहीं होगा. इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग. सो किसी वर्गों के साथ सोलमेट वाला रिश्ता हो सकता है, किसी वर्गों के साथ ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता हो सकता है. सो यू हैव टू असेंड योर वाइब्रेशंस, असेंड योर सेल्फ, रेज योर वाइब्रेशंस. अपनी एनर्जी को, अपने फ्रीक्वेंसी को, अपने वाइब्रेशन को रेज कीजिए, तब जाके मैनिफेस्टेशन पॉसिबल है. अदरवाइज मैनिफेस्टेशन इज़ नॉट पॉसिबल. अगर आप लो लेवल थॉट्स रखेंगे दिमाग में, नेगेटिव थॉट्स रखेंगे, नेगेटिव इमोशंस लेके चलेंगे, तब आप कैसे उठ पाएंगे भला. सीढ़ी में चढ़ने के लिए ये सब ताकत ज़रूरी है ना. उतरने में ताकत नहीं लगता है. ज़रा सोच के देखिए तो, मैनुअली जब हम लोग सीढ़ी चढ़ते हैं, चढ़ने में ज़्यादा ताकत लगता है, उतरने में टाइम नहीं लगता है. उतरना बहुत इजी होता है, आसान होता है. चढ़ने में ही स्ट्रेंथ लगता है ज़्यादा कंपेयर टू उतरना. सो लेट मी सी व्हाट द एंजल हैज़ टू से. पास्ट लाइफ रिलेशनशिप. You have known each other before. See how these two cards relate. How magical, you know. This is how the universe guides us. Our angels, fairies guides us. ये सोलमेट के बारे में जो कहा जा रहा है, हो सकता है ये आपके पास्ट लाइफ का कोई रिलेशनशिप आपका होगा इस इंसान के साथ, चाहे लड़का हो या लड़की हो, कुछ भी हो. पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, इसीलिए सोलमेट हमेशा ज़्यादातर देखा जाता है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप होता है सोलमेट के साथ. इसीलिए बॉन्डिंग इतना डीप लगता है सोलमेट के साथ. यही रीज़न होता है, क्योंकि हम लोग पिछले जन्म में किसी ना किसी वजह से एक साथ रह चुके हैं या फिर रिलेशन शेयर कर चुके हैं किसी ना किसी वजह से. कुछ भी हो सकता है. तो यू हैव नोन ईच अदर बिफोर. आप एक दूसरे को पहले से जानते हैं.
इतना जान लीजिए, बिकॉज एंजल्स ग्रीन सिग्नल दे रहा है आपको, आप एक दूसरे को पहले से जानते हैं, इसीलिए ये इंसान आपका सोलमेट भी हो सकता है, आपका ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, इसीलिए आपका बॉन्ड इतना डीप है, बिकॉज इट्स अ पास्ट लाइफ कनेक्शन, इट्स अ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, you have known each other before. So, okay, Libra, I'll be moving on to the next card, next deck. This is True Emotions Oracle deck. Okay, so here I go with this deck. Okay, now I'm using the Fairies Oracle deck as a guidance from the angels, from the fairies, and that is from the universe, because we are all part of this beautiful, wonderful universe. Okay, see, you know why I smiled? Because this card says it's True Emotions Oracle deck. This card says, I left you to make you realize my importance. I left you to make you realize my importance. यहाँ पे आपके लिए कार्ड आया था एक्शन में, रिकन्सिलिएशन। रिकन्सिलिएशन का मतलब क्या होता है? फिर से मिलना, वापस आना, मुद्दे को सॉल्व करके फिर से वापस आना. That's why I smiled, because how it matches. Just have a look how it matches, how it is linked to one another. So that's why Virgo people, your partner, it could be either you or your partner, maybe one of you have left to make your partner realize your importance. ऐसा हो सकता था, ऐसा हुआ होगा शायद आपके साथ कि आप छोड़ के गए हैं, आपको इम्पोर्टेंस नहीं मिल रहा है, चाहे वो शादी वाले रिलेशनशिप में हो, शादी वाले बॉन्ड में हो, या फिर लव अफेयर वाले रिलेशनशिप में हो, लिव इन रिलेशनशिप में हो, नो कॉन्टैक्ट जोन में अभी है, उसमें भी हो सकता है, कुछ भी मुद्दा हो सकता है, कुछ भी रिलेशनशिप सिचुएशनशिप हो सकता है, एनी सिचुएशन. सो इसीलिए आप छोड़ के गए थे कि आप, ताकि आपके पार्टनर को आपका इम्पोर्टेंस पता चले. कभी कभी हम लोग ऐसा करते हैं, ऐसा सोचते हैं करने को. तो इसीलिए यहाँ पे रिकन्सिलिएशन का कार्ड आया था और वो एक्शन कार्ड आया था. इसका मतलब आपको अभी जो छोड़ के गए हैं, आपको अभी वापस जाना चाहिए. आपके पार्टनर को एहसास हो चुका, आपके इम्पोर्टेंस के बारे में उसे एहसास हो चुका. अब प्लीज़ वापस जाइए, रिकन्साइल कीजिए अपने पार्टनर के साथ. सो
आपके पास्ट से वापस आ रहा है, वो आपका सोलमेट हो सकता है, ट्विन फ्लेम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो रिकन्सिलिएशन हो सकता है, या फिर हो सकता है कि पिछले लाइफ में पास्ट कर्मा में कुछ अनबन हुआ था, इस लाइफ में आप लोग वापस मिल रहे हैं इसे सॉर्ट आउट करने के लिए। ऐसा भी होता है ना हम लोगों के साथ, क्योंकि पास्ट लाइफ का तो हम लोग को याद रहता नहीं है हम लोग क्या किए हैं। तो हो सकता है इस लाइफ में आप लोग फिर से मिल रहे हैं, रिकन्साइल कर रहे हैं। पास्ट लाइफ में शायद आप छोड़ के गए थे अपने पार्टनर को इम्पोर्टेंस का एहसास दिलाने के लिए, इस लाइफ में आप फिर वापस आ रहे। भगवान ने, यूनिवर्स ने आपको, आप दोनों को एक दूसरे को मिलाया या मिलाने वाले हैं। सो द फेरीज गाइडेंस इज फ्लरिश. The lotus flower fairy tells you to learn from the experience and shed your inner light on any unclear areas of your life or those of others. Even this card is related to these two cards. Past में जो हुआ उससे सीखिए, learn from your experience. Shed your inner light on any unclear areas of your life. रिकन्सिलिएशन हो रहा है या फिर हुआ है, इसका मतलब ब्रेकअप हुआ था, चाहे इस लाइफ में हो चाहे पास्ट लाइफ में हो। ब्रेकअप हुआ था, पास्ट कुछ एरियाज अनक्लियर था आपके लाइफ में, इसीलिए इस लाइफ में आप लोग फिर मिल रहे हैं वो पास्ट इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए। सो इसीलिए फ्लरिश करने को कहा जा रहा है, रिकन्साइल एंड फ्लरिश. Flourish as an individual, flourish as partners in love, flourish in your relationship. This is what is being asked and guided by the angels, by the fairies. This is the card, and it's written flourish. These are very well connected cards, so take it as a guidance from the universe. Hope you have enjoyed and liked your reading, Virgo people. Wish you all the very best in your love life, and do comment and share your views, how it resonates. Once again, I am saying this could be Virgo, your side, this could be your partner's side, or vice versa. So take it as it resonates, take it accordingly. Wish you all the very best in your love life. See you in my next reading. Thank you. Take care. Bye bye.